So, good afternoon to all. Myself Priyanka Sharma, and I welcome you all to the EduLab classes. Okay, so here we are covering the questions of the real analysis question series, right? So, let's start with our question. So, in this question, what is being said? So, it is being said that F is a mapping which is from R square to R square, and it is defined in the way like f of x comma y is equals to e raised to the power x plus y comma e raised to the power x minus of y. Okay. Now, what is your aim? You have to find the area of the image of the region under the mapping f. Okay, you have to do this, and the region that is being given to you is x comma y belongs to my R square, where x is greater than 0 and y is less than 1. Okay. So I'm telling you the question how you have to solve this step by step. Okay. So let's start with the solution of this question. Okay. So now the thing that is being given to you is that f is your mapping which is from R square to R square. Okay. Now such that your f of x is being defined to you as e raised to the power x plus y comma e raised to the power x minus y. Okay. Now how we are going to do it? We are just going to define the two variables u. We are just going to define u in the form of x plus y, and we are going to define b is as e raised to the power x minus of y. Okay. So from this what we can get that if we take the log on both sides, we get that ln of u is equals to x plus y, and from here what I can get that x minus of y is equals to ln of b, right? And after solving the equations, we can get that x is equals to log of uv upon 2, and we get that y is equals to 1 by 2 of ln or log of u by v. Okay, how we are getting this? After solving these two equations. You can easily solve this equation. I'll just tell you how to solve it. If we add this equation and this equation, what I'm going to get, that is 2x is equals to ln of u plus ln of v, right? So that means x is equals to ln of uv, right? And this is equals to 2. This I am getting x. So now y can be calculated as y is equals to x, like from this it can be x minus of ln of v, right? And what you have as your x is actually your ln of uv upon 2 minus of ln of v, right? So from here what you get that like this can be written as your ln of u plus ln of v, right? This can be written as like this. So from here you can get easily that ln, that is 1 by 2 of u by v. Okay, so this is that actually. So it can be nothing but it is ln of uv upon 2, right? This is your x and this is your y. Okay, so now how we are going to do it further? Like we can write that हमें पता है like x किसके कहाँ से कहाँ तक में जा रहा है, 0 से लेके 1 तक के बीच में जा रहा है, और x क्या है मेरा? X is nothing but ln of uv by 2, isn't it? Yes. So it can be written as like in the place of x what I can write? I can write ln of uv upon 2, right? दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा? ln of uv 2, दैट मीन्स ln of uv की रेंज 0 से लेके 2 के बीच में हो गई, ठीक है? एंड सिमिलरली फॉर द y ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम. y कहाँ से कहाँ तक में ला जाएगा था? 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास? y की वैल्यू है 1 by 2 of ln of u by v, राइट, विच इज लेस देन 1. अगेन 2 से मैं दोनों तरफ क्या करने वाली? मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे को क्या मिल जाएगा कि ln of uv की रेंज 0 से लेके 2 के बीच में अगेन हो गई है. सो अगेन रेंज 2 के बीच में होगी, लेकिन अंदर के फंक्शंस में स्लाइट डिफरेंसेस है, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू विद दिस? वी कैन डू वन मोर थिंग विद दिस. व्हाट इज दैट? इफ आई टेक log on, इफ आई टेक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, तो e रेज टू द पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ क्या लेने वाली हूँ? एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेने वाली हूँ, तो e रेज टू द पावर 0 हो जाएगा.
ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो u बाय v बचेगा और ये e रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स 1 uv लाइज बिटवीन e रेज टू द पावर 2 एंड 1 के बीच में ये मेरा लाई कर जाएगा, राइट। यहाँ से मेरे पास ये वाली चीज निकल के आ गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मीन्स अब मेरा जो गिवन रीजन होगा इमेज का वो किस किस से बाउंडेड होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द थिंग्स ओवर हियर, दैट इज द रीजन, दो जो मेरा रीजन है, ठीक है, जो मेरा गिवन रीजन है इज नाउ बाउंडेड बाय, दैट मीन्स जो चीजें मुझे x और y में दे रखी थी अब वो u और v में चेंज हो चुकी है, और वो किससे बाउंडेड है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि u इज इक्वल्स टू v, सो दूसरा पॉइंट हो जाएगा दैट u इज इक्वल्स टू e स्क्वायर v, नाउ थर्ड पॉइंट विल बी that uv is equals to 1 and the fourth point will be uv is equals to my e square, ठीक है। तो मेरा जो रीजन है वो इनसे बाउंड हो गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कैसे, ठीक है। ओके, सो मेरी जो फिगर है वो अब ऐसे मैनिपुलेट हो चुकी है, ठीक है। आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा जो भी मैंने पीछे पॉइंट लिखे थे। क्या क्या पॉइंट लिखा था मैंने, पहले लिखा था कि रीजन किससे बाउंड हो चुका है, दैट इज u इज इक्वल्स टू v, फिर मेरा जो u है वो कहां से कहां तक जा रहा है, e स्क्वायर v वाला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा v क्या हो चुका है, सॉरी u v मेरा क्या हो चुका है, दैट इज 1 हो चुका है। दूसरा u v क्या हो चुका है, मेरा e स्क्वायर हो चुका है। अब ये चीज मैं कैसे लेके आई हूँ, लेट्स गो बैक टू द लास्ट शीट अगेन। सो ये चीजें मुझे कहां से पता चली है, मुझे इक्वेशन से ही पता चली है। लाइक मैंने आपको ये वाली रेंज निकाल के दिखाई थी कि u v वाली, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेती हूँ तो e रेज टू द पावर 0 ये u v हो जाएगा, इट इज e रेज टू द पावर 2, दैट मीन्स 1। u v की रेंज कहां से कहां तक में हो गई है, u v की रेंज 1 से लेके e रेज टू द पावर 2 के साइड तक हो गई है। तो एक ये हो चुकी है और एक ये हो चुकी है, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने वही पॉइंट्स लिखे थे, u v मेरा 1 है और u v मेरा e स्क्वायर है। सिमिलरली अगर इसको u के टर्म्स में लिखती हूँ तो u की रेंज कहां से कहां तक की हो गई है, v से लेके v e स्क्वायर तक हो चुकी है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इनिशियली u इज इक्वल्स टू v और दूसरा u इज इक्वल्स टू v e स्क्वायर, ठीक है। And these are the things I have just written exactly on the next sheet, which is being evaluated from this result and this result. Okay, so let's again go to the next sheet and further continue with this question. All right, I think what I have written with the red pen is being clear to you. Okay, so let's continue with it. Now what we have to do, just write the first thing. The first thing is that जब मेरा u मेरे v के इक्वल है, ठीक है, राइट, और दूसरी चीज u v किसके इक्वल है, मेरे 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, दिस थिंग इम्प्लाइज टू u कि u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब मेरा u v के इक्वल है और दूसरा u v किसके इक्वल है, e स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, जब u v के इक्वल और ये चीज e स्क्वायर के इक्वल है तो दैट मीन्स इसको क्या लिख सकती हूँ, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू e स्क्वायर, दैट मीन्स u किसके इक्वल हो चुका है, e के इक्वल हो चुका है, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू e, राइट। दैट मीन्स u और v की रेंज कहां से कहां तक में जा रही है, 1 से लेके e तक में जा रही है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट वो ये है कि अगर मैं u को क्या ले ली, e स्क्वायर v है, ठीक है, और दूसरा u v किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, यहां से मुझे ये पता चल रहा है, लाइक इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, राइट, सो आई एम गेटिंग कि मेरा u किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा, और v किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई e के इक्वल हो जाएगा। अब ये चीज कैसे पता लगा ली, आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी देख सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर एज लाइक दिस। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट। लाइक यहाँ पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये कितना आ जाएगा, e स्क्वायर v डॉट ऑफ v इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये e स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय v स्क्वायर के, तो v हो जाएगा आपका 1 बाय e, तो v 1 बाय e हो गया। सब्स्टिट्यूट ओवर हियर यू विल गेट e इक्वल्स u इज इक्वल्स टू e, ठीक है। नाउ द फोर्थ थिंग दैट इज कि अगर आप u को क्या ले लेते हो, e स्क्वायर v ले लेते हो, राइट,
और दूसरा यू बी किसके इक्वल है, ई स्क्वायर के इक्वल है सिमिलरली। तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएंगे, लेट्स सॉल्व इट। आपने u किसके इक्वल हो, ई स्क्वायर वी के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ई स्क्वायर वी डॉट वी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू 1 हो गया, पॉजिटिव रीजन ही हम कंसिडर कर रहे हैं। नाउ अब आपको u निकालना है, तो u क्या हो जाएगा आपका, ई स्क्वायर डॉट ऑफ 1 एट अ प्लेस ऑफ v पुट 1, तो u आपका क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये चीज निकल के आ चुकी है। तो जो जो हमने निकाला है, लेट्स कीप देम इन द बॉक्स बिकॉज दे आर वेरी नेसेसरी इन सॉल्विंग द इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है। तो यहां से हमने ये चीज निकाली थी, राइट, इसको a ले लो, यहाँ से हमने ये चीज निकाली थी, इसको b ले लो, यहाँ से हमने ये चीज निकाली थी, इसको c ले लो, और यहाँ से हमने ये चीज निकाली है दोनों, इसको d मान लेते हैं। नाउ हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन जो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो where is the cursor, man? Yeah, here is the cursor. Okay, so now let's solve it. So now the integration will be equals to, like, from u की रेंज कहाँ से कहाँ तक पे जा रही है, u की रेंज जा रही है 1 से लेके e तक में, तो ये यहाँ से लेके u की रेंज जा रही है, u की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक पे जा रही है। फिर u की रेंज कहाँ से कहाँ तक पे जाएगी, फिर जाएगी e से लेके ई स्क्वायर तक। तो हम क्या चल रहे हैं, हम चल रहे हैं इस पूरे रीजन को हमें कवर करना है, ठीक है। और हम कैसे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, दैट मीन्स u वैरीज फ्रॉम 1, देन इट गोज टू e, देन इट गोज टू ई स्क्वायर, हियर इज e एंड हियर इज ई स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे ही इंटीग्रेशन को कवर करने वाले हैं। दैट मीन्स पहला जा रहा है मेरा 1 से लेके e में, जो भी आएगा अंदर में ब्रैकेट बताते हैं। सिमिलरली फिर जाएगा आपका e से लेके ई स्क्वायर में u की वैल्यू, जो भी आएगा इंटीग्रेशन में भी हम लिखते हैं, ओके। तो जब मेरा u 1 से लेके e तक जा रहा है, ठीक है, e तक जा रहा है, तो मेरी वैल्यूज कैसे लिखी जा रही है, 1 से लेके हम कहां तक पे लेके जा रहे हैं, हम e तक पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट, वेयर इज द कर्सर मैन, या हियर इज द कर्सर। सो तो जब 1 से लेके e तक में जा रही है मेरी वैल्यू, राइट, e तक में जा रही है, तो मेरी वैल्यूज क्या लिखी जा रही है, बिकॉज मुझे पता है u और v का रिलेशन क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो u की u कहां से कहां तक पे जाएगा, और दूसरा u की वैल्यू 1 दे रखी थी, v की वैल्यू भी 1 दे रखी थी। तो स्टार्टिंग विद द इनिशियल पॉइंट u इज इक्वल्स टू 1, इट गोज अप टू e पे क्या वैल्यू दे रखी है, बिकॉज हम e पे जा रहे हैं, e पे जा रहे हैं, तो e पे क्या वैल्यू दे रखी है v की, इट इज 1 बाय u, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली वैल्यू। सिमिलरली अब मैं e से लेके ई स्क्वायर में जाऊंगी, u अगेन कवर होगा, तो u कवर होगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, दिस इज नथिंग बट इज इन द फॉर्म ऑफ e स्क्वायर u, राइट। ये यहाँ पे क्या कवर हो रहा है, ई स्क्वायर यू, बिकॉज इसका लिखने का मतलब है, ई स्क्वायर यू का मतलब हो रहा है कि ये रेंज किसकी आ रही है, ई स्क्वायर से ले, अब हम ई से लेके किस में जा रहे हैं, ई स्क्वायर में जा रहे हैं, राइट, माइनस ऑफ यू अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ में आई। नाउ wait, this is for b, because b कहां से कहां तक पे जा रहा है, या ओके 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 ओके, या ओके, दिस इज u एक्चुअली, ठीक है। तो हम इसके इंटीग्रेशन को वैसे कंप्लीट करते हैं, दैट मीन्स अब इसका इंटीग्रेशन करो, दिस इज u स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ ln ऑफ u, तो रेंज कहां से कहां तक है, 1 से लेके e में। सिमिलरली ये चीज यहाँ पे कैसे चली जाएगी, ये चला जाएगा मेरा e स्क्वायर, दिस इज e स्क्वायर
ln of u माइनस u स्क्वायर अपॉन ऑफ 2e स्क्वायर, राइट। जहां पे हमारी u की रेंज क्या है, u कहां से कहां तक में जाएगा, अगेन इट विल गोज फ्रॉम e to e square, right? So now this is e square upon of 2 minus of ln of e, right? And then minus of 1 by 2 minus ln of 1, right? So ये हो गया हमारा फर्स्ट खत्म ब्रैकेट. Now next we have to solve it for the next element. So this is e square ln of e square minus of e square, that means 4 हो जाएगा upon of 2e square. This is the first one, right? Again minus of, this is e square ln of e minus of e square upon of 2e square, right? So when I'll solve all these things, what I'll get, e square upon of 2 minus of 1 minus of half and log 1 is 0 plus this is 2 comes in the front, this is 2e square, l and e goes to cancel, this is minus, so this is e square upon of 2 minus again e square and this is minus minus plus 1 by 2. Okay, now let's see what are the things going to cancel and what are not. So yeah, so from this half goes to cancel, this is from e square, this e square goes to cancel, so this is 2e square minus of e square, this is e square minus of 1, right? So that means which option is the right answer of this question? So the option number D is the right answer of this question. Okay, so all these things we are just going for u itself, right? We are just varying the range of u, that is from 1 to e and then from e to e square, and I have written just in the integral itself that only. Okay, so that the things will be clear to you actually. Okay, कि हम u की रेंज में ही चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ओके, सो बेसिकली एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसमें कर दिया, uv में ट्रांसफॉर्म कर दिया और uv को हम सॉल्व कर रहे हैं. सो दिस इज द सम डिफरेंट क्वेश्चन दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि कैसे कौन सी वैल्यू हम लेके आ रहे हैं. ओके, आई थिंक दिस इज बीइंग वेरी क्लियर टू यू. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so now what does this question says to you? So according to this question, it is being said to you that f और g आपको क्या कर रखे हैं, फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0,1 से r में डिफाइन कर रखा है, जिसमें हमें fx डिफाइन कर रखा है x कब, जब x मेरा 1/n दे रखा है फॉर n बिलोंग्स टू माई नेचुरल नंबर्स एंड इट इज 0 अदरवाइज केसेस में, और g ऑफ x आपको दे रखा है 1 कब, जब x बिलोंग कर रहा है q इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0,1 एंड अदरवाइज में gx मेरा 0 निकल के आ रहा है. नाउ देन from the 4 option we have to choose the one option that which one going to be the right one. Okay, so let's start with it. Let's start with the solution of this question. So ये solution में हमारे साथ क्या है. Okay, so अब f और g मुझे डिफाइन कर रखा है कि वो क्लोज इंटरवल 0,1 से कहां तक में जाएगा, r में जाएगा. ठीक है, और उसको डिफाइन कर रखा है कि f ऑफ x मुझे x 0 दे रखा है विद अ डिफरेंट कंडीशन कि x इज इक्वल्स टू हाफ, और अदरवाइज दे रखा है दूसरा gx दे रखा है अगेन मुझे 1 और 0 अगेन विद अ डिफरेंट कंडीशन कि इफ x किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, q इंटरसेक्शन 0,1 में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अदरवाइज वाला केस. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द डायरेक्ट रिजल्ट, और वो डायरेक्ट रिजल्ट है क्या कि f c ये चीज मुझे दे रखी है. ठीक है, तो मेरा जो f है वो रीमान इंटीग्रेबल है, क्यों, एज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ डिसकंटिन्यूटी हैज अ यूनिक लिमिट. तो फ्रॉम द फंक्शन इट इज बीइंग क्लियर कि मेरा जो f है वो क्या है, इज रीमान इंटीग्रेबल. क्यों, रीजन क्या है कि मेरे जो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, राइट, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ continuity of discontinuity has a unique limit point.
ये सेट ऑफ पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, राइट, और उनकी क्या आ रही है, यूनिक लिमिट आ रही है। तो फ्रॉम दिस रिजल्ट मुझे पता चल गया कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है। नाउ अब जी की बात करते हैं। मेरा जो जी है वो क्या है, इज लेस बेजियू इंटीग्रेबल। मैं इसको लेस बेजियू इंटीग्रेबल क्यों बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि जी इज डिसकंटिन्यूअस एट काउंटेबली मेनी पॉइंट्स। काउंटेबली मेनी पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या आ रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है मेरा, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अब देखो कैसे, जब अदरवाइज चल रही हूं तो जीरो आउटपुट आ रहा है, और जब एक्स क्यू इंटरसेक्शन 0,1 में आ रहा है तो ये आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास 1 निकल के आ रहा है। तो जी क्या हो रहा है मेरा, डिसकंटिन्यूअस है एट काउंटेबली मेनी पॉइंट्स पे। सो दिस इज द रीजन कि जी जो होगा वो लेसबर्स इंटीग्रेबल होगा। आई एम राइटिंग अ रीजन ओवर हियर, क्यों इज अ लेसबर्स इंटीग्रेबल, एज मेरा जो gx है वो क्या है, इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। ये क्या हो रहा है मेरा, डिसकंटिन्यूअस है एट काउंटेबली मेनी पॉइंट्स, राइट। तो दो रीजन हो चुके हैं जिसकी वजह से fx को मैंने रीमान इंटीग्रेबल बोला और gx को मैंने लेसबर्स इंटीग्रेबल बोला। f को मैंने रीमान इंटीग्रेबल क्यों बोला, क्योंकि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गई है मुझे जिसपे यूनिक लिमिट जा रही है। और gx को इसलिए बोला क्योंकि इस this function is discontinuous at countably many points. So which option is the right answer of this question? So the B option, because f is Riemann integrable and g is less base u integrable. Okay. So we have just uses the direct result for solving these questions. Okay. So now let's move on to the other question. Okay. So now, what does its question says? In which of the following subsets in R square is not compact? Now you have to tell that which of the following is not compact, right? For the compact, we know that if it is compact, it is closed and bounded, right? This result we know. So now, let's start solving this question so that we'll just get to know that which one is not compact. Okay. See, we know when E रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अगर मुझे कोई फंक्शन दे रखा है, x यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पे जाता है तो ex किस पे जाएगा, मेरा जीरो पे चला जाएगा, राइट, दिस वी नो दैट। सो इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स अगर मैं लेती हूँ, x को इन्फिनिटी भेजती हूँ तो ये हो जाएगा साइन जीरो, राइट, साइन जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो क्या आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए, है ना। और यहाँ आउटपुट क्या दे रखा है, तो यहाँ आउटपुट क्या दे रखा है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या दे रखा है, मेरे को जीरो दे रखा है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू, राइट। सो दैट मीन्स विच ऑप्शन इज नॉट compact, that means the option which is not compact will be the C option, because C option में compact के साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं। अगर मैं इसे कॉम्पैक्ट मान के चलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कॉम्पैक्ट मान लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे दो चीजें शो करनी, पहली चीज शोनी पड़ेगी क्लोज्ड और दूसरी चीज शो करने की भी पड़ेगी बाउंडेड। अब जब ये क्लोज्ड और बाउंडेड नहीं आ रहा तो इट विल बी अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर अजम्पशन, राइट, कि मैंने इसे कॉम्पैक्ट माना। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फ्रॉम द ऑप्शन सी। So here the option C is the right answer of this question, that says that it is not compact in R2. Rest of the options are fulfilling the compactness property, but the option C is not fulfilling that, right? Reason being is that it is not bounded, right? So it not comes out to be bounded. This is the reason we are saying that it is not compact, because if we start assuming that it is compact, we have to prove that it should be closed and it should be bounded. But it comes out that it is not bounded. So therefore, it is a contradiction to our assumption. That is why we are saying that it is not compact, because of the reason as it is not bounded. Okay. So I think it is clear to you. So the option C is the right answer of this question. Okay.